ओके अब आई गया इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस થઈ ગયેલી બટ નો પ્રોબ્લેમ fine. Okay, now what is your question? If A is having element 1 and hello, the another one, hello, હા now another one, હું ગયો બીજો બીજો હું hello, હા internet connectivity બહુ ઇસ્યુ છે આજે કે ભાઈ ઝૂમમાં ડાયરેક્ટલી પ્રોબ્લેમ છે. મોટો બરાબર ચાલે છે સર ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. હા તો તારો ક્વેશ્ચન શું હતો? એક એલિમેન્ટ મારી પાસે 1 વાળો સેટ છે. હા નાવ हेलो हेलो क्या Yes, वॉइस sir. हाँ तुम्हारा सेकंड सेट सेकंड सेट कौन सा है? हेलो Yes, sir. हाँ दूसरा सेट कौन सा है? जो क्वेश्चन था ध्रुव का शायद. सत्यम Sir, your voice is not clear. मे बी कनेक्टिविटी इश्यू. हेलो नाउ इट इज ओके. हेलो 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 Hello. नाउ Yes, इट इज sir. ओके. नाउ इट इज ओके. Yeah, better than first one. There is a network connectivity issue from my side. Maybe due to that you cannot get proper voice. Okay. Now it is okay. હા Yeah. हाँ तो सत्यम કે ક્રિસ કોનો ક્વેશ્ચન હા હતો? કોનો ક્વેશ્ચન હતો? ચાલ મારો હા બોલ બોલ. हेलो हेलो Yes. हाँ વાંધો નહીં નેક્સ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. As we read the above statement as A is the subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B. मतलब क्या हुआ? मेरा एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. Then and then we can say it is the subset. If A is not a subset of B, we can write like this. Just cut out the subset symbol. Is it okay? Yes. Now, here is your answer. It is possible that every element of B may or may not be in F. If it is also happen that every element of B also in N, then we shall also have B subset of A. In this case, A and B are the same set. So that we have A is subset of B એ and सबसे B is subset of A बी implies A is equal to B. बी अगर A के सभी एलिमेंट B के अंदर है और B के सभी एलिमेंट A के अंदर है, both are the subset of each other, then and then we can say A equal to B. बी Yes or no? Now, Yes. it follows from our definition that every set A is a subset of itself. मतलब A के सभी एलिमेंट A के अंदर है तो सब एक दूसरे के सबसेट कहलाएंगे. Since Yes. empty set has no element, we agree to say that empty set is the subset of every set. मतलब अगर कोई भी सेट का सबसेट नहीं है तो empty set itself
वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल में जाओगे आपको पता चलेगा। नाउ कंसीडर द केस phi, that is an M set, A having 1 3, B having 1 5 9, C having 1 2 3 5 7 9. Now phi blank B, phi के बारे में क्या कहेंगे? Subset. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि phi empty set always be the set subset of any set. Now for A and B, A नहीं is है। subset of B. yes, No, A A is A is subset of subset of C. B or C. A is नहीं, C. A is A is not not subset of B. B क्योंकि सिर्फ A is एक ही है, subset of C 3 नहीं है. और B is subset of C. Is it clear? Yes. Now let A is equal to A E I O U and B is equal to A B C D. Is A is the subset of B? No. No. Then why? Because every elements of A are not present in B. In B. And B is the subset of A? Same No. reason. Same reason. Yes or no? Yes. Now, example number 11. Let A, B and C be three sets if A belongs to B and B is subset of C. Is it true that A is subset of C? क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन मत देखो पहले, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं सर, नहीं समझ आया। क्वेश्चन समझ में नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हमें ए बी और सी तीन सेट दिए गए हैं, ठीक है? यस और नो? हाँ सर। ना यस सर। ए बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे सबसेट का सिंबल नहीं है। बिलोंग्स मतलब ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर से है। यस और नो? Yes. यस। मेरा ए का जो भी एलिमेंट रहेगा वो बी से बिलोंग करेगा, ठीक है? और जो मेरा बी है वो सी का सबसेट है, मतलब Subset मेरे है। बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर है। C में। इज इट ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ सी? Yes. यस, इट इज ट्रू बिकॉज मेरा ए का सभी एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। दैट B मीन्स में। डायरेक्टली ए के सभी एलिमेंट Is मुझे सी में भी मिलेंगे। C में. Yes. So that A is subset of C. Yes or no? Yes. यस सर। Next, subset of set of real numbers. That is nothing but a simple rooster format, or you can say definition format. Now, इसके अंदर क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5. That is subset of Z. Yes or no? Yes. हाँ। Z is the subset of R, क्योंकि Z के सभी एलिमेंट हम्म। मेरे R के अंदर है, सॉरी Q के अंदर है, हाँ। एंड Q के सभी एलिमेंट R के अंदर है। यस और नो? हाँ। Yes. तो N is the subset of A, which is subset of Q, which is subset of R. R. Yes or no? Yes. Yes. यस सर। Is it clear? यस। ना देखो यहाँ पे सही है हाँ। ना। इंटरवल, अब इंटर का मतलब क्या है? इफ a set having limited numbers of element and we can represent it by a simple method, or you can say by using intervals. मतलब मान लो कि मेरे सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है और वो मुझे शॉर्ट में दिखाने हैं,
तो इसके लिए मैं इंटरवल यूज कर सकता हूं. लेट a b belongs to R and a is less than b, then the set of real numbers is called open interval and is denoted by in Sir, bracket a and b. हेलो. सर एक हाँ क्वेश्चन है. बोलो. ये टी सबसेट आर क्या है? यहाँ पे मुझे एक सेट दिया हुआ है टी. जैसे मान लो कि मेरा टी एक सेट है जिसे मैंने डिनोट किया है द सेट ऑफ ई रेशियल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय टी. ठीक है. पहले मैंने बताया था ना कि सेट के लिए आप कोई भी नंबर कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो. तो यहाँ हाँ. पे ई रेशियल नंबर को टी के तौर पे लिया है. दैट इज ऑल एलिमेंट ऑफ टी कंटेन इन आर सो दैट टी बिलोंग्स सबसेट ऑफ आर. ये सुनो. हेलो. हेलो. आवाज आ रहा है क्लियर? सर आपकी आवाज कट रही है. अब आ रहा है क्लियर? हेलो. सर हेलो. हेलो. हाँ आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है थोड़ी. Sir, हाँ. your voice is not coming. नाउ इट इज ओके. नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू है आज. नाउ if I'm talking about a set having an element which is in between two limits, like suppose मान लो. हेलो. यस सर. मेरा एक सेट है. यस और नो? हेलो. Yes, sir. हाँ. मेरा एक सेट है 2 3 4 5 6 7. इज इट ओके? हाँ. where x 1 is less than x and 8 is less than x. yes or no? यस. तो अगर ये सेट की मैं बात करूं मेरे सभी एलिमेंट 1 और 8 के बीच में है. हाँ. यस तो सर. इसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं. सो दैट इज नोन एज ओपन सेट और यू कैन से ओपन इंटरवल. ये क्या कहलाएगा? हेलो. हेलो. Yes, sir. ये क्या कहलाएगा? ओपन इंटरवल. ओपन मतलब जो नंबर्स और यू कैन से द एलिमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन regular bracket, then the number cannot be the member of element or you can say member of set. All the points between a and b belong to open interval but ab themselves does not belong to the interval. मतलब इसको अगर मैं रूस्टर फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से लिखा जाएगा. हेलो. Yes. हेलो. फॉर ओपन इंटरवल मेरे इंटरवल के अंदर दिखाए गए एलिमेंट के बीच के सभी एलिमेंट मुझे लिखने हैं. यस और नो? हाँ. यस सर. नाउ द इंटरवल which contains the endpoint also is called closed interval. Like क्लोज. for square bracket 1 8, अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं तो मेरे 1 और 8 को भी इंक्लूड करने पड़ेंगे. यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 8. या अच्छा 8 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. हाँ मैंने लिखा ना 8. हेलो. अभी लिखा. इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हेलो. लेट दिखाई देगा. हेलो. हाँ हाँ. हाँ ओके. यस सर. Now we can also have an intervals closed at one end and open at another, like this.
क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करनी। ओपन क्लोज्ड, ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड बी को करना है। यस और नो? हाँ। दैट इज लाइकवाइज हियर। अगर मैं इसको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे ओपन के अंदर, क्लोज के अंदर ए बी इंक्लूड, हो गए। बी पी इंक्लूड और दोनों के बीच के सभी। क्लोज्ड ओपन, ए को इंक्लूड करना है, बी को नहीं करना बी है। को नहीं। ओपन ए क्लोज, को नहीं करने का, ए बी को को नहीं नहीं। करना है, बी को करना है। यस और नो? यस। On that basis, Yes, sir. we are going to start with exercise 1.3. उससे पहले पावर सेट क्या है वो देख लेते हैं। तो पावर सेट मतलब the number of subset which we can derive from the given set. The collection of all subset of A is called the power set. मतलब मेरा वाह। एक सेट है 1 and 2, देन उसके जो सबसेट रहेंगे 5 1 2 1 2, इसको अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिखता हूँ और यू कैन से रूस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरा पावर सेट कहलाएगा। और उसका फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है 2n। जस्ट नोट डाउन दिस इक्वेशन। द नंबर ऑफ पावर सेट, यहाँ पे आपको m दिया है, 2m लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The number of subset which we can derive from the given set is 2 raised to m, where m is number of element। मतलब मेरे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको 2 के पावर में मल्टीप्लाई करूं तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा नंबर ऑफ सबसेट कहलाएगा। एक्सरसाइज में देखते हैं तो पता चलेगा। नाउ make correct statement by filling the symbols either subset or not subset in the blank space, isn't it? Hello? 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 हेलो। Yes. Now exercise 1.3, हमें सिंबल लगाना है सबसेट है या नहीं है। ठीक है? हेलो? Yes. हेलो। फाइन। First is पहला क्वेश्चन, subset. फर्स्ट इज सबसेट, Sub- सेकंड वन subset. इज नॉट सबसेट, No. हाँ। थर्ड वन, थर्ड वन है। फोर्थ वन, फोर्थ वन नहीं है। नहीं. एक्स इज ए फिफ्थ वन सर्कल भी नहीं इन है। अ प्लेन। समझो पहले थर्ड वन। X is a student of class 11 of your school. X is the student of your school. सबसेट हुआ क्या नहीं हुआ? थर्ड वन, हेलो? होगा. हाँ। फॉर फोर्थ वन, X is the circle in plane. हेलो। हाँ, मेरे पास एक प्लेन है, उसके अंदर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ वन की। हाँ। मेरा जो x है वो एक सर्कल है और दूसरा क्या दिया हुआ है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ 1 यूनिट रेडियस। सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ 1 यूनिट और पहले उसमें सर्किल नहीं का दिया। कोई यूनिट नहीं दिया। दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट। यस और नो? Yes. नाउ x is the triangle in plane and x is the rectangle in plane. सेम हुआ कि नहीं नहीं, हुआ? No. No. X is an equilateral triangle in plane.
X is a triangle in the same plane. सबसेट है क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम ही है सर। ये इक्विलेटरल है, उसके सभी साइड्स इक्वल रहेगी, ठीक है। हाँ और उसी प्लेन के अंदर अगर मैं बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा तो मे बी उसके आ अंदर जाएगा। वो इक्विलेटरल आ सकता है। हाँ नाउ 7 सबसेट है। हाँ, समझ रहे हो? Yes. नाउ एग्जामिन whether the following statements are true or false. Number 1, है False. ट्रू false. है। True है फॉल्स number है 1. मतलब Number 2, ए है। number 3, नहीं है। 4, True. 5, फॉल्स आएगा शायद। 5. क्यों सर ट्रू आया? 5 की बात कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ वन। और फोर्थ का ट्रू क्यों आया? मेरा जो सेट ए है उसके एलिमेंट सेट बी के अंदर है कि नहीं है? कहाँ पे है? क्यों ए और यहाँ पे ए है कि नहीं है? है। तो फिर हेलो हाँ फॉर हेलो फिफ्थ वन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया होता तो ये ट्रू कहलाता। यस और नो? हाँ बिकॉज Yes. ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी, तो यहाँ पे ये सिंबल की वजह से ये फॉल्स कहलाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा है 2 4, यस और नो? फॉल्स। एंड x इज द नेचुरल नंबर हाँ, विच हाँ। इज डिविजिबल बाय 36। ट्रू। सही है। यस और नो? हेलो हेलो हेलो, Or क्लियर है यहाँ तक? yes. Now, for exercise question number 3, let a is equal to 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसका क्या करेंगे? हेलो, हाँ इसका क्या करेंगे? 3 और 4 वो ऑलरेडी हमें कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है, सो कंबाइनली हम इसको अ सिंगल एलिमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? Yes. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? ये करेक्ट है पहला वाला, क्योंकि अगर 3 और 4 को मैं एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करता हूँ देन ए एंड बी, सॉरी मेरा जो ये एलिमेंट है वो सेट के फॉर्म में इसका सबसेट कहलाएगा। Yes. सर ये भी आवाज ट्रू नहीं है। आ रही। हेलो, ये Yes, भी sir. ट्रू है क्योंकि 3 और 4 दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। हाँ इज इट पॉसिबल? दोनों सही थोड़ी होंगे। ये अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ट्रू कहलाएगा, अदरवाइज फॉल्स। यस और नो? क्योंकि 3 और Yes. 4 तो मेरा एक एलिमेंट है ना कि सेट है, और सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। यस और नो? तो Yes. मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो गया? कौन सा? कौन सा? ये थर्ड वन। थर्ड वन ना, सेट के अंदर सेट दिया हुआ है।
हाँ हाँ वैसा। क्योंकि एक मेंबर जो है वो मेंबर सबसेट तभी कहलाएगा अगर उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी सही है, हाँ। वन बिलोंग्स टू ए। ये गलत है हम्म। क्योंकि इसको हमने सबसेट नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट Curly नहीं brackets. किया है। ये सही है, Yes. ये गलत है हम्म। क्योंकि फाई इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम यहाँ पे ये सिंबल निकाल दे और सिंपल सी लिखे तो ये कहलाएगा। यस और नो? Yes. Yes. नाउ sixth one is also wrong because 1 2 5 is the element of a, not the set of a. Yes or no? Yes. कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो ये सही कहलाता। नेक्स्ट, False. क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट अ सेपरेट एलिमेंट। 3 और 4 कंबाइनली एक हाँ। एलिमेंट है। यस और नो? Yes. नाउ नेक्स्ट, 5 is also a subset of any set। मैं पहले ही बताया था। हाँ पावर सेट में बताया। हाँ, और ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने जब एम्प्टी सेट बताया था तब हमने कहा था या तो ब्लैंक सेट के कर्ली अंदर ब्रैकेट लिखो पावर्स। या फिर फाई, दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। नहीं लिख बताया सकते। था। हाँ। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जैसे पहले की मैं बात करूं, फाई एंड ए, इजंट इट? Yes. दूसरा कोई सबसेट नहीं रहेगा। यस और नो? Yes. हाँ। इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले का आंसर बड़े ये, सेट के अंदर yes, सेट। ये मेरा पहले का आंसर। यस और नो? Yes. नाउ फॉर नंबर 2, दूसरे सेट के कितने एलिमेंट रहेंगे और यू कैन से सबसेट रहेंगे? Curly दो bracket है के तो अंदर A, 2 B, raised to A, 2, B and 2 5. raised to 2 is equal to 4। यस और 4 नो? Yes. 5 सबसे पहला 5, सेट ए सेट ए, बी बी, और सेट बी। ए, Set AB. बी। यस और नो? Yes. नाउ फॉर थर्ड वन, 9 elements. 2 raised to 3 that is 9. 2 equal to raised to 8। 3 is 8. 6 5, नहीं 8 1, 1, 2, 2, 3. 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3. 2, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1, whatever, And 1, 2, 3. and 1, 2, 3। Yes or 3. no? 1, Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Yes or no? Yes. For हाँ 5 क्या आएगा इसका? 5 एक ही रहेगा। 5 यहाँ एक ही है। 5 is self the subset of 5। Yes or no? Yes. Now for fifth question, how many elements has power set of A if A is equal to 5? 1. Yes? क्यों 1? Because 2 raised to power 0 is equals to 1. Number of element it is 0 and 2 raised to 0 is equal to 1. Is it okay? Yes. हाँ Now for sixth question we have to write down the question in form of intervals। इंटरवल चलो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? इक्वल टू है कि इज नॉट इक्वल टू? ग्रेटर देन नहीं है, ओनली लेस देन ही दिया हुआ ना, मतलब Yes. सिर्फ लेस ओपन देन दिया है तो ओपन आएगा। देन 6 के लिए लेस देन इक्वल टू है क्लोज तो यहाँ Close. से क्लोज। इसके लिए क्लोज्ड, ओपन। 0 to. यस और नो? Yes. इसके लिए इसमें दोनों ही नहीं, दोनों ओपन। इसके लिए दोनों दोनों क्लोज। दोनों Close. क्लोज। यस और नो?
Yes. Yes. Now write the following intervals in the set below form. एकदम इजी है. Yes. हाँ. उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले के लिए x X. where -3 less than x less than 0. yes or no? Yes. हाँ. क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे -3 लेस देन x लेस देन 0 हो जाएगा, बाकी का एज इट इज रहेगा. यस और नो? Yes. फॉर हाँ. सेकंड वन, Yes. फॉर सेकंड वन Second one वो fourth वाला है ना, उसके जैसा, मतलब x belongs x to where x x where belongs to r r 6 6 less than 6 equal to less less than than is x equal to X less than equal to 12. by yes or no? 12. yes. नंबर 3 ओपन वो क्लोज. सेम ही होगा लेकिन हाँ, वो एक साइड इक्वल टू रहेगा, लेस दूसरी देन हो साइड नहीं जाएगा. रहेगी. हाँ. एंड फोर्थ वन और उसमें एक साइड क्लोज और एक साइड ओपन. मतलब 23 एक वाला, साइड मतलब equal. 23 23 हाँ, less than x लेस देन इक्वल टू x equal to less x than less 5. than 5. Is it okay? Yes. हाँ. Now question number 8, what universal set would you propose for each of the following? अगर हमें कोई यूनिवर्सल प्रपोज करना है, यूनिवर्सल सेट मतलब द सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर सभी एलिमेंट हो, उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट. इज इट ओके? सो Yes. अगर मैं बात करूं अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी आ सकता है. हाँ. तो अगर उसके लिए मुझे कोई सेट डिफाइन करना है तो मैं क्या डिफाइन करूंगा? एक पूरा प्लेन, Yes. वहां पे कहीं पे भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं. हाँ. सो द यूनिवर्सल सेट फॉर फर्स्ट इज अ प्लेन, मतलब एक प्लेन रहेगा जिसका साइज इनफाइनाइट है. यस और नो? Yes. डोंट Yes. वरी फॉर दैट, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आपको कंसेप्चुअली सोचना है. द सेट ऑफ आइसोस्केलर ट्राइंगल्स मतलब हेलो. Sir, your voice is not coming. हाँ, द सेट ऑफ आइसोस्केलर ट्राइंगल, उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए भी सेम, मैं यूनिवर्सल सेट के तौर पे एक प्लेन सिलेक्ट करूंगा. यस और नो? Yes. फॉर क्वेश्चन नंबर 9, given sets A 135, B 246 and C 0246, which of the following may be considered as universal set for all three sets A, B and C? ऐसा Third कौन सा one. सेट है जो मैं यूनिवर्सल सेट के तौर पे सिलेक्ट कर सकता हूं? तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने क्या कहा? द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फॉर गिवन सेट, जो सेट हमें दिया हुआ है उसके अंदर रहने वाले सभी एलिमेंट जिस सेट के अंदर होंगे उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे. इज इट ओके? Yes. Yes. नाउ फॉर सेट ए 1 3 5, B 2 4 6 and C 0 2 4 6 8, मतलब हमें दिए गए चार ऑप्शन में से ऐसा सेट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8 एलिमेंट हो. Option 3 0 to 8, 0 to 10 वाला. पहला ऑप्शन देखते हैं, उसके अंदर 8 नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये तो सिलेक्ट नहीं होगा. 5 वो भी सिलेक्ट नहीं होगा 5 भी नहीं आएगा. 3 आएगा और फोर्थ उसके अंदर तो हमें 0 दिया ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ ऑप्शन भी निगलेक्ट हो जाएगा.
क्लियर है? सो हमको 7 थोड़ी ना इंक्लूड करना है। 7 चाहे इंक्लूड करना हो या ना करना हो, लेकिन ए, बी और सी तीनों के सभी एलिमेंट जिस सेट के अंदर होंगे वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। हाँ समझ में आई मेरी बात? मेरा Yes. ए जो Yes, sir. है, मेरा ए जो है ये सेट का सबसेट है। सपोज इसको अगर मैं पी सेट के नाम से डिनोट करूं तो ए इज द सबसेट ऑफ पी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट पी के अंदर है। पी में है। बी इज सबसेट ऑफ पी, बी के सभी एलिमेंट पी के अंदर है। सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ पी, सी के सभी एलिमेंट पी के अंदर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पी के अंदर जो भी एलिमेंट दिए हो वो ये तीनों में होने चाहिए। अगर मैं कोई एक सेट सिलेक्ट करता हूँ, उसका जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर है, देन यूनिवर्सल सेट इज सेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट। यहाँ तक क्लियर है? हाँ Yes. कोई डाउट? नहीं नहीं? No. तो वेन डायग्राम अभी तक जो भी नहीं। हमने पढ़ा, अभी उसको हमें फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। डेट इज अवर वेन डायग्राम्स। वो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है? Yes. ओके, आज का अटेंडेंस कौन कौन प्रेजेंट है? क्रिस, यशु एंड सत्यम इज देयर? हेलो? Yes. हेलो। आप 3 लोग ही प्रेजेंट हो ना? हाँ 8 जन है सर। कौन कौन है? पता नहीं, मैं दो को नहीं जानती, नए जस्ट अ स्टूडेंट है मिनट, शायद। जस्ट अ मिनट। Hello. हु इज सर एक अर्पित है एंड और हु एक इज व्योमपति? व्योम है। अर्पित, अनम्यूट योरसेल्फ और जवाब दीजिए। यस सर। हाँ, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप? हाँ मैथ। और व्योम? व्योम Leave the class. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घबरा ठीक है? गया। नेक्स्ट पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक। क्रिस भी एब्सेंट है। क्या? क्रिस एब्सेंट है। क्रिस एब्सेंट है। अभी तो था ना, कहाँ चला गया? वो कुछ बोल नहीं रहा, आपको खाली बता के चला गया। कोई बात नहीं, प्रेजेंट है ना। ओके फाइन, मिलते हैं क्रिस नेक्स्ट पीरियड के अंदर। स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है? Okay. बाय। तो व्योम आया। कोई बात Bye. नहीं। बाय।